Welcome to IYDS India. This workshop organized by Indian Youth Development Skill India. I'm happy to welcome you all in this Microsoft Access workshop. In this video lecture, we are going to cover Microsoft Access basics, working with data, running queries and reports, databases, design tips, and much more. Now, before I'm starting the workshop, I requested to all of you subscribe the channel and comment on the video so that we easily identifying the active participants. Now I'm starting the lecture. Be attention and be active. First of all, go to the search bar and type ACCESS access. यहाँ पे आप देख सकते हैं Microsoft Access आ गया. जस्ट क्लिक करें. यहाँ पे Microsoft Access आपको कई सारे टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट देता है, लेकिन हमें यहाँ पे डिजाइन करना है खुद से. तो सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक टेम्पलेट्स, क्रिएट करेंगे. ये हमारा ब्लैंक डेटाबेस तैयार हो गया है. दिस इज द फर्स्ट टेबल विच इज 1. Now we are here in this. This is the ribbon bar, home, file, home, create, external data, database tools, fields and table. And this is the tell me features. You can ask whatever you want. Just click on that and type whatever you want to ask from the MS Access software. Suppose I want to know the queries. So just tap on this queries. Click on that queries. There's the several options of queries are listed below. Go to the queries. Just click on that. Okay. And this is the ribbon bars. File, home, create, external data, database tools, fields, table, and the tell me features. And this is the quick access toolbar. You can click on that, any of that you want to put in the quick access toolbar. I'm going to select the mode. Just click on that. See, our mode is displayed in the quick access toolbar. And this is the redo and the undo button. And this is the save. See, this is the sign in features. If you have a Microsoft account, you can sign in from there. Okay. We are in home. Now, this is our new table. ये हमारा new table है. Now, we are going to convert in design view format in this sheet. आपको इसमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो डेटा बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहे हैं. So just click on that right button of your mouse. Go to design view options. Click on that. Now give your name, table name. I'm going to give the participants name here. Participants data. Click OK. See, our participants data has been created in this sheet. This is by default ID number, and this is the data type, automatic data type number. You can change by click on that any other options for ID, but हम लोगों ने ऑटो नंबर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट्स को एक जनरेटेड ऑटो नंबर एक आईडी नंबर वो इशू करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे नाउ गो टू द नेक्स्ट रो. क्लिक ऑन दैट. टाइप पार्टिसिपेंट्स नेम. Go to
Data tab. This is the data type format and this is the field name. We are here short text here. We are choosing short text here for writing our name. यहाँ पे हम लोगों को नाम लिखना है तो शॉर्ट टेक्स्ट चेक करेंगे. सिलेक्ट कर लिया. Now moving towards the next options, like we are going to put date of birth, DOB. Now यहाँ पे टाइप में, डेटा टाइप में हम लोगों को सिलेक्ट करना है date and time. We are selecting date and time for our date of birth options. Click on that date and time. Now the next row, we will put here qualifications. यहाँ पे मुझे चूज करना है लुकअप विजार्ड. शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते थे बट वी आर गोइंग टू चूज लुकअप विजार्ड फॉर मल्टीपल ऑप्शंस. लुकअप विजार्ड सेलेक्ट कीजिए. I will type in the values that I want. Just select on the second options. Go to the next and put here your qualifications. I'm going to give graduations. Second options, post graduation. Third options, MBA, post MPhil, PhD. ओके, हम लोगों ने 5 यहाँ पे क्वालिफिकेशंस सेलेक्ट किए हैं. गो टू फिनिश. यहाँ कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक ऑन दैट फिनिश बटन. Towards the next section, you are going to give the city ad. City. अब हम लोगों ने शॉर्ट टेक्स्ट की जगह यहाँ पे फिर से लुकअप विजार्ड डालना है. Go to the I will. Next. Oh shit, no. Lookup wizard. Next. Give the desired options. Delhi, Mumbai, कोलकाता. हम लोगों ने 3 ऑप्शंस यहाँ दिए. आप जितने भी चाहते हैं दे सकते हैं. Next. And then click on that finish button. Go to state. Again we are selecting here lookup wizard. I will type in the next in the values that I want. Next, Delhi, Maharashtra and West Bengal. क्योंकि हम लोगों ने सिटी भी उसी हिसाब से सिलेक्ट किया है. नेक्स्ट, फिनिश. नाउ हेयर कंट्री. कंट्री तो हमारा इंडिया ही है. लुकअप विजार्ड, एक ही कंट्री सिलेक्ट करते हैं, इंडिया. नेक्स्ट एंड फिनिश. And there is the option of zip code. Now we are choosing here in data tab number format. Okay, and the next option is photo of the participants. Now we are select here attachment file in data tab, and the last is email address. In this data tab, we are going to select the hyperlink options. Now I'm going to save my participants data. Click on that
right click on that participant data, go to save options. Now again right click on that and close. See, now there is the tables which is participants data. Just click on that, double click on that participant data. See, our data has been created in the sheets. Participants, date of birth, qualifications, city, state, country, zip code, and the photo, email addresses along with addresses. यहाँ पे participants का नाम आ गया, date of birth, qualifications, city, state, zip code, email addresses, जो हम लोगों ने participants data में टाइप किए थे डिजाइन व्यू में. ठीक है. Now we are going to put here participant's name. Now I'm going to select give any name, Arun Kumar. Okay. जैसे ही हम लोगों ने अरुण कुमार पार्टिसिपेंट्स का नाम लिखा, यहाँ पे आईडी नंबर जो है जनरेट ऑटोमेटिक ये कर दिया 1 विच इज 1. डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या गिव डेट ऑफ बर्थ है 5/19/1998. क्वालिफिकेशंस आई एम गोइंग टू गिव ग्रेजुएशन. जब बस जी लिखा ग्रेजुएशन आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि लुकअप विजार्ड जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था यहाँ पे वही ऑप्शंस है. यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में आप क्लिक कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन मेनू फॉर द ऑल फॉर viewing the all options here. Graduations, post graduation, MBA, MPhil and PhD. I am going to give graduations here. Now click on the tab button for moving in the city column. Now select the Delhi D. लुकअप विजार्ड का फायदा ये हुआ दोस्तों कि जैसे हम लोगों ने डी लिखा वो दिल्ली सिलेक्ट कर गया, लिखने की जरूरत नहीं हुई और हमारा टाइम भी बच गया. Now again click on that tab button of your keyboard. On your keyboard just click on that to moving up the next section. State again Delhi, the country is India, zip code. Okay, and this is the options of photo attachment file. Just double click on that attachment file, go to add, download options, pictures here, select any pictures, select the pictures here. Okay, see our attachment. See, now I'm going to give the email address for arun@gmail.com. ठीक है, ये हो गया. जैसे हम लोगों ने दूसरा आईडी पे जाता हो, जैसे ही अभिषेक कुमार जैन, जैसे ही मैंने अभिषेक जैन लिखा, दूसरा पार्टिसिपेंट्स का नाम लिखा, वैसे ही आईडी नंबर ये क्रिएट कर दिया which is 2. Now I am going to give date of birth 90, graduation, post graduations I am going to give post graduations Mumbai, Maharashtra, India. Attachment file, again you have to attach the attachment of the participant's photo. Just click on that. Okay, now ये attached हो गया 1. Now moving towards the email addresses, jan@gmail.com. ठीक है. Now we are going to move the next section which is form. ये हम लोगों ने participants name सारे documents put कर दिए यहाँ पे details. अब हम लोगों को क्या करना है, ये
फॉर्म जनरेट करना है इसका. So we are going to move the create options, the create ribbon here. Just click on that create. यहाँ पे फॉर्म ऑप्शंस एक आप देख पा रहे होंगे. जस्ट क्लिक ऑन दैट फॉर्म. सी, ये हमारा फॉर्म व्यू ऑप्शंस आ गया. बाय ड्रैग शॉर्ट योर कॉलम्स, जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं. वो आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन करें. कुछ भी चीज ऑटोमेटिक या मैनुअली ले. ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया. पास पहला. Now there is the next options, next record. Just click on that, and this is the second, which is Abhishek Jain. Now click on that next. This is the third participants, which is blank now. Form view. Click on that form view for writing here. Form view. Now I'm going to give Sweta Das, date of birth 25th of August 2000. Qualifications, I'm going to give qualifications MBA here. City Kolkata, West Bengal, country India, zip code, and the photo. Just click on that, double click on that photo options. Here's the options of attachment of photo. Just click on that photo options. Hit OK. Now give email address sweta@gmail.com. ईमेल एड्रेस में आपको याद होगा तो हम लोगों ने डेटा टाइप में क्या सिलेक्ट किया था, हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक सिलेक्ट करने का फायदा ये हुआ हमें कि अगर हमें ईमेल करना है इसे तो जस्ट क्लिक करेंगे हम और इसे ईमेल कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं, मेल टू sweta@gmail.com, मेल टू श्वेता. एक ही क्लिक पे आप इसको मेल कर सकते हैं, आपका जो भी कंटेंट और जो भी मैसेज है. ठीक है. नेक्स्ट, again I am putting new candidates. Aparna Roy, date of birth 8/3, MPhil, city Mumbai, state Maharashtra, India, zip code. Photo, just click on the double, add photo here. Email address aparna@gmail.com. Next, हमारे पास पहले 2 पार्टिसिपेंट्स के डिटेल्स थे, अभी 5 आउट ऑफ 5 हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए. अब यहाँ पे हम देखते हैं पार्टिसिपेंट डेटा में जाकर, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहा है. जस्ट रिफ्रेश करें आप यहाँ पे, ये देखें. रिफ्रेश करने के बाद जो हम लोगों ने वहाँ फॉर्म पे फिल किए थे, यहाँ पे एज इट इज सेम डेटा बनकर आ गया है. अंडरस्टूड? Now again I am going to participant data and fill
New participants details. Hardeep Wadia, date of birth 5/5/92. Qualifications, date of birth change. 5 qualifications, PhD, city Delhi, country India. Double click on that photo options. Now add, select the photo, hit OK, and give here email addresses. Next. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने हरदीप वालिया दिखा बट यहाँ पे अपेयर नहीं हुआ. क्लिक ऑन दैट रिफ्रेश करते ही हरदीप वालिया यहाँ पे आ गया है. अब क्या है, ऑप्शंस ऑफ बोल्ड है, यहाँ से फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं. और इफ यू वांट टू फॉन्ट कलर, just click on that any color you want. See, लेकिन हमें ब्लैक ही रखनी है, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले कोई कलर. कॉलम को आप जैसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है. होप यू अंडरस्टैंड. नो, ये तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया फॉर्म्स के जरिए. ये ऑटोमेटिक फॉर्म्स था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा. बट जब भी फॉर्म बनाए तो आप अपने हिसाब से बनाए, ब्लैंक फॉर्म टेम्पलेट लेकर. तो वो कैसे करते हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं. क्लोज. नो, वो फॉर्म्स डिलीट हुआ बट डेटा हमारा एज इट इज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो गो टू क्रिएट रिबन for creating a new blank form. Just click on that create. There's the options of blank form. Click on that blank form. ये blank form खुल गया. ठीक है, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स फील्ड लिस्ट है. अभी कुछ भी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं है. ठीक है, now go to view options to convert into a design view form. This is the design view form options. Click on that. ये design view select हो गया. This is the grid of rules, ruler, grids. Just click on that, show all tabs. Participants data. हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स बनाया डेटा वो यहाँ पे टेबल आ चुका है. अब क्या करना है, ये डेटा को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से हमें फॉर्म को डिजाइन देना है, डिजाइन करना है. क्लिक ऑन दैट प्लस बटन और just drag it by holding here. See, आप यहां से सिलेक्ट कर ले. go to home, and arrange stacked.
सभी को आप यहाँ पे पहले फिल कर ले, उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले इसको। नाउ यहाँ से आप से क्लिक कर कर डिजाइन कर ले, ठीक है। डिजाइन करने में थोड़ा वक्त जाता है, बट कीप पेशेंस। डिजाइन कर ले अपने हिसाब से, पेज को, फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफी यूजफुल टूल है किसी भी डेटा को सेव करने और क्रिएट करने के लिए। आप इसमें कई सारे डेटा सेव कर सकते हैं, कस्टमर से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम्स। मैं टाइम लगाकर एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, सो आप भी जल्दी ना करें, अच्छे से बनाए। फोटो को मैं यहाँ रखता हूँ। फोटो मुझे यहाँ चाहिए। अब इसे मूव करने के लिए क्या ऑप्शंस है, ये देखिए। मैं मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों एक साथ मूव हो रहा है। तो डिजाइन व्यू में जाकर, अरेंज में जाकर, स्टैक्ड ऑप्शंस, यहाँ पर ये ऑप्शंस है, क्लिक करें, फिर से एक सिलेक्ट करके स्टैक्ड, ये हट गया वहां से, पहले मर्ज था वो हट गया। अब क्या है, यहाँ पे ये फोटो है, स्टैक्ड फोटो। उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये फोटो को मैं यहाँ पे फोटो बीच में सेंटर पेज के रखता हूँ, ठीक है। ये फोटो आ गया। अब ईमेल एड्रेस यहाँ पर, टाइम लगाकर, एक बार टाइम लगाकर आप फॉर्म डिजाइन कर ले, क्योंकि यही फॉर्म आपको आगे जितने भी डेटा आएंगे सारे में यही चलने वाला है। तो आपको ये अच्छे से डिजाइन करना होगा, ठीक है। ये आपने डिजाइन कर लिया, सारे को सिलेक्ट कर ले। अगर आपको चेंज करना है इसके फॉन्ट साइज और एनी कलर, just click on that font, give any color, choose any color from that. Okay, here's the
options of size, font size here. I'm going to just bold my font. See, ये क्या है, हमारा फॉर्म तैयार हो गया, बट अभी भी कुछ खामियां हैं इसमें। क्या करना है मुझे, हमारे फॉर्म में हमें बटन लगाना है। Now go to design ribbon for button options. There is the button key. This is the button options here. Just click on that button and drag it here. जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा विच इज कमांड बटन विजार्ड। तो मुझे अभी एक गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर आपको पिक्चर्स के साथ चाहिए इसे तो आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज दिस इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड, but I want to give the text here. So मैंने यहाँ पे text select किया, then click on next and finish. See, first record यहाँ पे बटन बनकर आ गया है। ठीक है, अब मुझे एक और बटन चाहिए यहाँ पे which is my last record. In the categories of record navigations, we select 4 actions, go to last record, next. Again we have to select text for that, next and finish. This is the last record. ठीक है, मुझे फिर से एक बटन चाहिए and now I'm going to give the category, change the category for save options. मुझे एक डिलीट ऑप्शन चाहिए तो डिलीट लेता हूं, टेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। दिस द डिलीट। एक और बटन इन द कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड ऑपरेशंस, प्रिंट ऑप्शंस, प्रिंट रिकॉर्ड, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, एक और बटन which is save record, next, text, next and finish। और इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, सेव रिकॉर्ड का मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बनाया। एक बटन और चाहिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, टेक्स्ट, फिनिश। ये हमें डिलीट ऑप्शंस को नीचे रखता हूं, नेक्स्ट यहाँ पे, प्रिंट को भी मैं नीचे रखता हूं अभी, डिलीट। यहाँ पे हमारे बटन फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट एंड नेक्स्ट, डिलीट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, देन द सेव रिकॉर्ड। यहाँ पे हमें एक और बटन बनानी है which is very very necessary।
record operations is the add new record. Next, click on the text next and finish. This is the add new record. Moving here. नेक्स्ट रिकॉर्ड को मैं ऐड रिकॉर्ड यहाँ पे रखता हूं मैं। सेव। अब हमें क्या करना है, अब इसे रन करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म व्यू पे जाना है। क्लिक फॉर्म व्यू ऑप्शंस। सी, हमारा फॉर्म बनकर तैयार हो गया है। आईडी, पार्टिसिपेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, सेव, कमांड, डिलीट एंड प्रिंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है। लास्ट क्या था, हरदीप वाडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट डेटा में लास्ट हरदीप वाडिया है। फॉर्म व्यू में आता हूँ। फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है हमारा, अरुण कुमार। पार्टिसिपेंट्स डेटा में मैं देखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड अरुण कुमार एज इट इज है, सेम बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक करेंगे, नेक्स्ट श्वेता, नेक्स्ट अपर्णा एंड द लास्ट इज हरदीप वाडिया। अब मुझे यहाँ से ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी है। क्लिक ऑन दैट ऐड रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड आ गया। अब नाम डाले यहाँ पे शमीर खान, डेट ऑफ बर्थ 17/9/2001, qualifications post graduation, city Delhi, country India, zip code, email address समीर। फोटो में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, ओपन, ओके, फोटो यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, सेव रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। अब हम जाकर देखते हैं एक्सेल सीट में, ये सीट जो है यहाँ पे हरदीप वाडिया के बाद शमीर नहीं आया है, तो रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के बाद ही आपका समीर खान डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अगेन मूविंग टू द फॉर्म व्यू, लास्ट रिकॉर्ड which is Shamir, first record which is Arun Kumar. If you want to delete this record, just click on that. I'm going to delete the last record. Delete record. Yes. See here. जैसे हम लोगों ने वहां पे डिलीट किया था, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे एक और नाम देता हूँ, सैमी, डेट ऑफ बर्थ
क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन, सिटी कोलकाता, स्टेट वेस्ट बंगाल, कंट्री इंडिया, जिप कोड, email address sammy@gmail.com, photo, save record, refresh all। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीटेड वो चला गया और यहाँ पे उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट आ गया। ठीक है, इसे सेव करना काफी इंपॉर्टेंट है। गो टू फॉर्म 1 ऑप्शंस, राइट क्लिक ऑन दैट, सेव हियर। यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ पार्टिसिपेंट्स फॉर्म। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे हमने सेव किया, एक टेबल है हमारा ये, एंड द सेकंड इज फॉर्म। ठीक है, ये तो फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया, बट हमें इसकी रिपोर्ट अब अगर जनरेट करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, सो गो टू क्रिएट, there is the report options in report ribbon. This is the report, create a basic report of the data in the current query and table. Click on that report. ये देखिए हमारा रिपोर्ट तैयार हो गया है। ठीक है, बट ये क्या है, एक्सेस जो हमें एक रिपोर्ट देता है वो अच्छे से जो डिजाइन फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म, अगर आपको इसे साइज करना है, रीसाइज करना है, तो आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्म, मुझे ये रिपोर्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्लोज, नो, क्रिएट में जाना है मुझे और यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल आ गया हमारा, सिर्फ एक ही टेबल है हमारे, तो पार्टिसिपेंट डेटा, और यहाँ पे फील्ड्स है, जितने भी सारे हमारे फील्ड्स है वो आ गए हैं यहाँ पे। तो आपको जरूरी नहीं है ये सारे डेटा को, ये फील्ड्स को लेना है, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे को ले रहा हूँ। और अगर आपको सारा नहीं लेना है तो आप जस्ट क्लिक करें उसे और यहाँ पे एरो ये क्लिक करें, पार्टिसिपेंट्स नेम चाहिए सिर्फ, आईडी अलोंग विद देयर आईडीज, और आप नेक्स्ट और फिनिश कर सकते हैं। बट मुझे सारा लेना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप देख पा रहे, फिनिश करूंगा इसे, फिनिश करता हूँ मैं, पार्टिसिपेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड द क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट। ये टैबुलर फॉर्म में है, मुझे कॉलम फॉर्म में चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से पेज ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज पोर्ट्रेट मोड, आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पे रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फिनिश, ये देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है।
आप अगर चाहे तो यहाँ से प्रिंट फॉर्म को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है फ्रॉम व्यू ऑप्शंस प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक कर ले। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारा ये पेज का डेटा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ इसे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। दिस इज द लेआउट व्यू। अभी हमारा जो फॉर्म है वो लेआउट व्यू में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट व्यू, ठीक है। दिस इज द रिपोर्ट व्यू, ये रिपोर्ट व्यू है। हमें लेआउट व्यू में रखना है इसे। यहाँ पर आप इसे प्रिंट देने से पहले यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये पेज मार्जिन क्या है, क्या आपको देना है, और पेज का साइज क्या है। अभी लेटर है विच इज बाय डिफॉल्ट, हमें A4 साइज में निकालना है। तो A4 सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे मार्जिन है विच इज नैरो बाय डिफॉल्ट, तो वो सब रहने देता हूँ। अब क्या है, पेज सेटअप में जाकर आप पेज सेटअप कर सकते हैं, क्लिक कर कर जो भी आपको पेज निकालना है बॉटम का, किस ओरिएंटेशन पे रखना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड द कॉलम्स। और प्रिंट देने के लिए फिर से होम में जाए, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस, एक बार प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू कर लिया और फिर प्रिंट, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, क्लिक करें, select the printer from here, all pages, or if you want to print one pages only, just click one as one and hit OK. Okay, मुझे ये प्रिंट नहीं देना तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसे, ठीक है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ तो हम लोगों ने सीख लिया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स कि क्यूरी कैसे रन करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कई सारे डेटा है, आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी फील्ड का प्रिंट निकालना है, उसे फिल्टर करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो you have to go the create ribbon here। यहाँ पे क्यूरीज ऑप्शंस आप देख रहे हैं, फर्स्ट इज द क्यूरी विजार्ड एंड द सेकंड इज अ क्यूरी डिजाइन। तो हमें जब भी सिलेक्ट करना है तो क्यूरी डिजाइन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से डेटा एनालाइज करना है तो आप क्यूरी डिजाइन ही सिलेक्ट करेंगे। क्लिक कर ले, ऐड करें, इसे आप क्लोज कर ले, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पार्टिसिपेंट्स डेटा है वो आ गया है। अब क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ड्रैग इट हेयर, पार्टिसिपेंट्स नेम आप अपने हिसाब से जिस भी फील्ड का आपको करना है आप कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग, ठीक है। फोटो चाहिए, फोटो भी ले सकते हैं। मैंने आईडी, पार्टिसिपेंट्स नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद देयर क्वालिफिकेशंस, मैंने 4 सिलेक्ट किया है यहाँ पे। अब क्या है, ये हमारा क्यूरी फील्ड है जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। सिर्फ 4 ही ऑप्शंस हमने, 4 ही डिटेल्स यहाँ पे लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है, क्यूरी को रन करना है मुझे। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट रन। देख सकते हैं आप, हम लोगों ने 4 फील्ड सेलेक्ट किए थे, आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड द क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे जो क्यूरी ऑप्शंस आया है सिर्फ 4 लोगों का है, 4 डिटेल्स है, सिर्फ ही 4 डिटेल्स पार्टिसिपेंट्स के।
अगर आपको ये सिलेक्ट करना और सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। डिटेल्स, 4 डिटेल्स लिखता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिटेल्स क्वेरी बनकर एक टेबल तैयार हो गया। आप यहाँ से चाहे डिलीट कर दें, क्लोज कर दें, बट यहाँ पे सिलेक्ट है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे खुल जाएगा। मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ठीक, अगर हमें किसी भी डेटा का एक फील्ड चाहिए, डिजाइन व्यू में आप जाएंगे, आप डिजाइन व्यू में पहुंच गए। अगर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे अनटिक कर दे और रन कर ले क्वेरी को। देख सकते हैं आप, जैसे ही हम लोगों ने अनटिक किया और क्वेरी को रन किया तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ गायब हो चुका है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है? सिर्फ 3 फील्ड, आईडी, नेम एंड क्वालिफिकेशंस। अगेन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे फॉर्म ऑप्शंस में डिजाइन व्यू पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अगर क्वालिफिकेशन सही नहीं चाहिए या फिर किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेट को। ठीक है, अब क्वेरी रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टेट भी ऐड हो चुका है। अगेन आपको अगर स्टेट नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दे और क्वेरी रन करें। यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है सारे आ चुके हैं। अब मान लीजिए आपको फिल्टर किसी भी पर्टिकुलर क्लास और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्राइटेरिया फील्ड है एक टिक मार्क के नीचे, आप वहां पे सिंपली क्लिक करें और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ फिल्टर बाय क्वालिफिकेशंस लिखें, क्योंकि हमारा जो फिल्टर करने का है वो क्वालिफिकेशंस में है, और ब्रैकेट को क्लोज कर ले स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, और क्वेरी रन करें। अब ये क्या है? इंटर पैरामीटर वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर किया है क्वालिफिकेशंस के आधार पे जो पर्टिकुलर हम चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन को आप फिल्टर करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को जानना चाहते हैं आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को कितने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रेजुएशन, यहाँ पे ये, और क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट में सिर्फ 2 ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम पार्टिसिपेंट्स डेटा में एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने सारे हमारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट है। तो 1 और 2 ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशन जिनका ग्रेजुएशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर होने के बाद यहाँ पे शो 2 किया है। Again you have to change, go to design view, run। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिख ले, हिट ओके। सिर्फ एक ही पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पीजी 1 है, पीएचडी भी 1 है, एमफिल 1 है। ठीक है, ये था हमारा क्वेरी रन करने का फॉर्मूला। और अगर आपको पार्टिसिपेंट्स नेम के साथ फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे, अगर सपोज आपको ए अल्फाबेट से कितने पार्टिसिपेंट्स है आपके पास वो अगर जानना है तो सिंपली आप अल्फाबेट ए लिखे और स्टार मार्क डालें और क्वेरी को रन करें। ये आप देख सकते हैं जितने भी ए नाम से कैंडिडेट्स से हमारे यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं 1 2 3।
ए नाम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे लिस्ट हो आ गया। ठीक है, और अगर फिर से चेंज करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर क्लिक करें, एस नाम से कितने हैं वो मुझे जानना है, जस्ट रन। एस नाम से हमारे लिस्ट में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं, श्वेता एंड सैमी। ठीक है, ये था क्यूरी रन करने का फॉर्मूला। अब क्या करना है हमें, क्यूरीज जो हमने फिल्टर किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिंट चाहिए, तो इसकी रिपोर्ट्स चाहिए पहले। तो इसे क्या करेंगे, क्रिएट में जाकर रिपोर्ट विजार्ड, हमें ये चारों फील्ड चाहिए उस पे। यहाँ पे क्यूरी सिलेक्ट है, ये डेटा मुझे चाहिए, क्यूरी 4 डिटेल्स, चारों फील्ड के मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करें और असेंडिंग ऑर्डर में एक फील्ड को चूज कर लें। नेक्स्ट, कॉलम फॉर्म, नेक्स्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट, फिनिश। यहाँ से व्यू को चेंज करें, रिपोर्ट व्यू, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ वही क्यूरी आया है यहाँ पे प्रिंट में जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, 4 फील्ड, आईडी, पार्टिसिपेंट्स, डेट ऑफ बर्थ एंड द क्वालिफिकेशंस। अब हमें इसे प्रिंट लेने के लिए प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ, और अगर प्रिंट लेना है तो आप क्लिक कर सकते हैं प्रिंट में, सिंपल है। यहाँ पे रिपोर्ट एक कॉलम बन गया, फॉर्म था ये, एंड द क्यूरीज फॉर्म, queries data, and the tables, which is our first data, participants data. This is the participants form. ये क्या है, ये reports है participants का, and this is the details of data, and this is the report of 4 details. अब हमें यहाँ पे फॉर्म, हमारा फॉर्म में 2 कॉलम ऐड करनी है, which is first is preview record और ऑल प्रीव्यू। तो हमें फिर से, अगर ये डिजाइन व्यू, पहले हमें ये सिलेक्ट डिजाइन व्यू में करना है, तो आप होम रिबन में व्यू में आकर डिजाइन व्यू में क्लिक करें, ये आ गया डिजाइन व्यू में। अब यहाँ पे डिजाइन व्यू में एक बटन ले ले फिर से, और कैटेगरीज रिपोर्ट ऑपरेशंस में प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट। अभी हमें पूरे डेटा का एक प्रीव्यू रिपोर्ट चाहिए प्रिंट के लिए। टेक्स्ट, फिनिश, ये हमारा प्रीव्यू रिकॉर्ड हो गया। अब एक बटन मुझे और चाहिए जो हम लोगों ने अभी क्यूरी बनाया उसके लिए। अभी जितने भी काम चल रहे थे मैनुअली, तो अब क्या करना है, एक ही बटन में हमें सारा क्यूरीज का जितना भी डेटा है फील्ड वो प्रिंट हो जाए। तो फिर से हम रिपोर्ट ऑप्शंस में जाएंगे, प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और डिटेल्स में जो हम लोगों ने क्यूरीज बनाया था वो किस नाम से सेव किया था, 4 डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिटेल्स, क्यूरीज के अंदर 4 डिटेल्स का ऑप्शन है, 4 डिटेल्स। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। मैं टेक्स्ट इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इजी वे में समझ आए, क्योंकि सिंबल जो होता है वो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं कि आपको भी समझ में आए ये बटन किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू रिपोर्ट में, मैं ये इसे डिलीट करता हूं।
ठीक है, फिर से मैं बनाता हूँ एक रिपोर्ट ऑप्शंस, प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, फॉर डिटेल, नेक्स्ट। यहाँ पर नाम देता हूँ मैं क्यूरी प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फील्ड हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसे फॉर्म व्यू में देखते हैं हम लोग। प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं पहले। देख सकते हैं आप प्रीव्यू रिपोर्ट में यहाँ से मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं आप एंड द साइज ऑफ द पेज। और अगर आपको पीडीएफ फाइल्स एक्सपोर्ट करना है तो क्लिक करें आप यहाँ पे। यहाँ पर बनकर आ गया ये फॉर्म। पीडीएफ फाइल में आप पब्लिश कर सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ फॉर्म। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्यूरीज मेरा रिपोर्ट वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं क्यूरीज हमारा रिपोर्ट तैयार हो गया। क्यूरीज में हमारा सिर्फ 4 डिटेल था, आईडी, नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस। अगर प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शंस पे, सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर एंड क्लिक ओके। नाउ मैं ये यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये। नो, ये तो हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक लिस्ट तैयार किया था, टेबल बनाया। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म तैयार की, रिपोर्ट बनाया और क्यूरी रन किया और उसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ फाइल में देखा, प्रिंट करना सीखा। अब क्या है, इस फाइल को सेव कैसे किया जाए। तो go to the backstage view, which is file, save option, save as, already वो सेव था, save as database, save as, yes, yes। यहाँ पे आप अपना एक्सेस वर्कशॉप बाय IVDS, मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो चुका। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वर्कशॉप पसंद आया होगा और फीडबैक फॉर्म भरना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा, जल्द से जल्द भर दें। 1 सप्ताह के अंदर आपको सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा लिंक के द्वारा। तब तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ना छोड़ें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट and now I'm going to end this workshop. Take care, have a good day, bye bye।